It is. Although it appears to be one single body, it's actually made up of millions of basic units coming together. What are these units called? They are known as cells. Cells come into cells. So basic unit of living organism is cells. So if this is a very, we can say an example which is shown behind is that irregular shaped cells are shown. Animal cell is irregular in shape. Why? What is the reason behind it? एनिमल सेल इस तरीके का होता है जैसे पीछे दिख रहा है, कोई ट्राइंगल जैसा है, कोई पॉलीगॉन जैसा है, कोई राउंड भी दिख रहा है और बिल्कुल क्लोज पैक्ड है. तो ऐसा क्यों होता है? एनिमल सेल ऐसा क्यों हो पाता है कि उसकी कोई भी शेप हो सकती है, किसी भी तरह का होता है? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज इट लैक सेल वॉल. क्योंकि उसकी क्या नहीं है? सेल वॉल नहीं है. सेल वॉल उसे रिजिडिटी देती है. इसमें लास्ट मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसमें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए इरेगुलर होते हैं एनिमल सेल्स. different numbers to form a body, rather any living organism's body. Can you guess the minimum number of cells required to form an organism's body? Do you know the answer? There are organisms which are made up of only a single cell. They are called the unicellular organisms. Bacteria are one of the best examples of this category. So, ऐसे organism जो सिर्फ single cell के बने हैं उन्हें क्या बोलेंगे? Which organisms? Unicellular. Cellular. Amoeba का example, bacteria भी होते हैं unicellular. What are organisms called then? We belong to the category of multicellular organisms. Those having several cells to make up the body are called multicellular organisms. Now the next ऐसे organism जो बहुत सारे multiple cells को compose करते हैं, उनकी body are made of many multicellular organism. Multicellular. They are multicellular organism. So Yes, ma'am. Humans, plants, animals, these are what? Fungus. Multicellular. Fungus. Fungus is also multicellular. The question is, if there are so many cells in our body, then are all of them exactly the same? Of course not. There are many number of cells in our body, and so are their types. Look at these cells, for example. These look so different. What are the names of these cells? कल भी हमने डिस्कस किया था सेल्स के नेम. सेल्स का डायग्राम एनसीईआरटी से देखा था. पहला सेल कौन सा है? प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल. Yes, that are the different types. But I am asking, जो स्क्रीन पे आपको 3 सेल्स दिख रहे हैं, उनका डायग्राम दिख रहा है, उनका नाम क्या है? ये ह्यूमन सेल्स हैं तीनों. कल हमने एक डायग्राम डिस्कस किया था एनसीईआरटी का. बीच वाला फर्स्ट वाला कौन सा है और लास्ट वाला कौन सा सेल है? मैम मिडिल वाला नर्वस सेल है शायद. नर्वस सेल है मैम मिडिल वाला. थर्ड नंबर का कौन सा है? मैम ब्लड सेल. रेड ब्लड सेल है. थर्ड नंबर का रेड ब्लड सेल है. फर्स्ट नंबर का कौन सा है? हाँ, एग सेल. सबसे लार्जेस्ट जो बॉडी में होता है फीमेल में एग. ठीक है, एग सेल है फर्स्ट वन. Body are called multicellular organisms. Then are all of them exactly the same? Of course not. There are many number of cells in our body, and so are their types. Look at these cells, for example. These look so different. But astonishingly, all 3 are a part of our body. This one is an ovum, this is a neuron, and the last one is a red blood cell. So ovum is also the biological name of egg cell. Egg cell को ही ovum कहते हैं. ठीक है, तो इनके शेप डिफरेंट है, इनका फंक्शन भी डिफरेंट है. ओवम का काम क्या है? ओवम इनका मैम वर्क डिफरेंट होता है. तो ओवम का काम है, गैमेट है ओवम, फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन. मतलब एग जब स्पर्म से फ्यूज करता है तब जाइगोट बनता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बनता है. न्यूरॉन्स का काम होता है मैसेजेस. जैसे अभी मैं आपको क्लास ले रही हूँ, आप मेरी आवाज
मैसेजेस देना और रिसीव करना। हाँ, और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, अंडरस्टैंड करना और पर्टिकुलर रिप्लाई देना, रिस्पॉन्स देना। आरबीसी का काम क्या होता है? ऑक्सीजन मैम कैरी करना ऑक्सीजन ब्लड Ma'am, टिश्यूज तक। मैम कैरी ऑक्सीजन टू द ब्लड टिश्यू, यस टू द टिश्यूज ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म। सिर्फ ऑक्सीजन ही हमें- नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी, वेस्ट चीजें भी, सब चीजें ट्रांसपोर्ट करता है, पानी भी ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड। ठीक है मैम इट मेक्स अ प्रॉपर बैलेंस इन आवर बॉडी। हाँ, वाटर का बहुत बड़ा रोल है और ब्लड के थ्रू ही सब चीजें होती हैं। ब्लड के थ्रू वाटर इज मेजर अमाउंट ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड के अंदर एक लिक्विड कंटेंट भी होता है जिसमें ज्यादा पानी होता है। Its sizes are totally different from each other, and so are their functions. This is how various types of cells come together in different numbers to form our body. We have this knowledge today, but ever wondered how all this was actually discovered? Let us तो डिस्कवरी कैसे हुई थी वो आपको पता होना चाहिए। तो कैसे हुई थी डिस्कवरी इसकी? Who discovered it? मैंने ठोकने की रॉबर्ट उसके द्वारा 65 में। रॉबर्ट हुक ने मैम जो कॉस्ट टिश्यू होता है उसके अंदर मैम उन्होंने जो डेड कॉक टिश्यू होता है बाग होता है ट्री का मैम उसमें से देखा था Very good. जब उन्होंने तो उन्हें मैम उसके अंदर डेड सेल्स दिखाई दिए थे। हाँ, मैम वो उन्होंने माइक्रोस्कोप में नोटिस किया था। किया था मैम। माइक्रोस्कोप में नोटिस करता तो उसके अंदर उन्हें मैम न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म ये सब मैम यस मैम, हेक्सागन शेप वाली फिगर दिखाई very दी good. थी। Yes, ma'am. Ma'am, that only consists of nucleus because तो सेल को डिस्कवर से फिर कुछ साइंटिस्ट ने उसके सेल थ्योरी भी दी कि सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं, सेल के। कुछ साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया, कुछ साइंटिस्ट ने साइटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। ठीक है, गोल्जी को साइटोप्लाज्म। ये सब चीजें थी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम ऑर्गेनेलीज पे थे, वी वर ऑन द ऑर्गेनेलीज एंड it's not we all love observed. reading storybooks. Every story is framed with sentences. And Again sentences it is showing. तो हम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के बारे में यानी ऑर्गेनेलीज के बारे में समझेंगे अब। ठीक है, cells form the basic units of life. We know this. And by now, we even know how the discovery of cells, as seen in the tree cork, was a breakthrough in biological studies. Now it's time to have a look at how the cells actually look under a microscope. For this, we select onion peel as our specimen. But before we begin with the procedure, let's first collect the necessary requirements. We will need a method of observing the onion cells under the microscope. Firstly, we take the onion peel and with the help of the forceps, pull away the thin lining from the inner surface. Before placing this on the slide, we first add a drop of water on, then place the onion peel on it. We are not supposed to touch the peel and even the slide with our fingers. Next, we add 2 drops of dilute iodine solution. Hold on. Do you Yes, know ma'am. Ma'am, iodine we have done it. specimen? We do this so that we can clearly see all the parts of the cell. Else it's difficult to study them as they are transparent. It would even be difficult to differentiate ma'am. between the various parts. तो इन्होंने अनियन पील में छोटा सा पील लिया, उसको 1 ड्रॉप पानी में स्लाइड के ऊपर रखा, फिर 2 ड्रॉप अनियन आयोडीन की डाली और आयोडीन ने स्टार्च से रिएक्ट करना है
और क्योंकि अनियन में फूड होता है, स्टार्च होता है, प्लांट का फूड स्टार्च के फॉर्म में, तो वो ब्लैक कलर का स्टेन हो जाता है, you'll get stained black color. Ma'am, it looks like in a purple color. I have remembered it. जब हमने देखा था पर्पल, हाँ जब हमने देखा तो पर्पल दिखा था बिकॉज हमने सैफरनीन से स्टेन किया था, बट यहाँ पर थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, डार्क दिखेगा बिकॉज इसमें आयोडीन से स्टेन कर रहे हैं. हमने देखा था तो पिंक भी दिखा था. Okay, ma'am. Make sure that no Yes, ma'am. are formed on the slide. With this, our slide is Yes, ma'am, we have done it. This entire process of setting up the microscope along with the slide is termed mounting. It's also important to see that there is enough light falling on the mirror of the microscope. Shall we observe it now? Here we go. Wow, doesn't it look Yes, ma'am. Now, before studying these, tell me one thing. Do plants and animal cells look the same? Do they have the same organelles? Or are the two types different in some ways? किस वे में डिफरेंट है प्लांट और एनिमल सेल? What are Ma'am, the it is, ma'am, मैम एनिमल सेल में ma'am, the presence of organelles is not same in animal and plant. कौन सी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती है एनिमल में जो प्लांट में नहीं होती? Which organelle is there which is in animal but not प्लास्टिड. हाँ, प्लांट में प्लास्टिड होते हैं, एनिमल्स में नहीं होते, और एनिमल्स में सेंट्रियोल्स होते हैं और प्लांट में सेंट्रियोल्स नहीं होते. ठीक है. Yes, ma'am. प्लांट में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं और एनिमल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं. Ma'am, small vacuoles होते हैं. प्लांट में सेल वॉल होती है और एनिमल में सेल वॉल एनिमल में सेल वॉल नहीं होती है, एब्सेंट होती है मैम उनके. Yes. Plant and animal cells are slightly different. When cells from a human cheek are scraped with a sterile cotton bud and mounted, similar but not exactly same cells are seen under the microscope. तो अगर हम अपने चीक सेल से स्लाइड बनाएंगे, चीक सेल से मतलब किसी भी चीज से अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर के गाल में से छोटा सा टिश्यू निकाल के स्टेन करेंगे तो इस तरह के दिखेंगे, ब्लू और राउंड, और ऐसे परफेक्ट सेल वॉल वाले नहीं दिखेंगे बिकॉज हमारे में सेल वॉल नहीं होती. Have these thick, distinct borders that differentiate each cell from the other one. Then we have these thin, tiny dark spots scattered all over. Also, we can spot this prominent circular structure here, which is very darkly stained. Any ideas what these things are? Well, these are the cell constituents. Let's get introduced to each in the next video. सेल कंपोनेंट्स की वीडियो है, इसको देखेंगे. अब हम इसमें ऑर्गेनेलीज बताएंगे. This is where we left off in the previous video. We mounted plant cells and animal cells on slides to observe them under the microscope. Let's study them in general in this video. For our convenience, let's select just one. Say the onion peel cells to understand the structure and the contents of the cell. Roughly, we've seen these thick, distinct borders that differentiate each cell from the other one. Then we have these tiny dark spots scattered all over. Also, we can spot this prominent circular structure here, which is very darkly stained. So, यहाँ पर हमें डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं हर सेल में और डार्कली स्टेन भी देते हैं. तो ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर न्यूक्लियस. ठीक है. और चारों तरफ जो ब्लूइश पानी सा दिख रहा है हमें, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म, एंड जो परफेक्ट इसकी शेप आपको दिख रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ सेल वॉल. एंड सेल वॉल के अंदर ही सेल वॉल के अंदर पतली सी एक बिल्कुल टच होती हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होती है. Any idea what these things are? Well, these are the cell constituents. Let's get introduced to each. This outer margin seen here is called the cell wall. If we zoom in a bit, we notice that there is another layer in the inner side of this cell wall. This is called the cell membrane. Yes, the outer wall is the cell wall and the inner layer is... तो एक ब्लू वाले लाइन के नीचे ही पतली सी व्हाइटिश लाइन है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. called the cell membrane. The cell membrane is also referred to as the plasma membrane.
It is porous in nature. So what does porous mean? It simply means that any material can move in and out of the plasma membrane. But isn't that dangerous? Of course it is. And the simple solution lies in the nature of the plasma membrane. That is because it is selectively permeable. So what does selectively permeable mean here? Just like a guard standing at the office door who allows only members with the identity cards to enter and exit, the plasma membrane also allows only specific materials to move across. We will look at this in details in our upcoming videos. This was just to understand how the plasma membrane is selectively permeable. So, बहुत कम चीजों को अंदर बाहर जाने देती है, सिलेक्ट करके अंदर बाहर जाने देती है चीजों को. It allows few materials to pass and does not allow other to exit. That is because the plasma membrane is made so. उसका नेचर ही ऐसा है. बिकॉज वो कहीं पर तो लिपिड से बनी है, कहीं पर प्रोटीन से बनी है, तो लिपिड्स हर चीजों को अंदर नहीं आने देंगे. सिर्फ अपनी जो चीजें लिपिड्स में घुल सकती हैं वही अंदर आ सकती हैं, और प्रोटीन्स भी हर चीजों को अंदर नहीं आने देंगे. वो सिलेक्ट कर करके चीजों को अंदर भेजते हैं. ठीक है. Now let's move ahead to know about the cell wall. Do you think all cells have cell walls? Well, the answer is no. That's because animal cells do not have cell walls. An animal cell only has the plasma membrane and not the cell wall. The cell walls act as protectors for plant cells. It's composed of a non-living rigid structure that is cellulose. It not only acts as a protector, but also gives a proper shape to the plant cells. क्योंकि सेल, प्लांट सेल पानी से बहुत ज़्यादा डील करते हैं, और प्लांट लाइफ स्टेशनरी भी है, अपने आप को कहीं पर भाग नहीं सकती. अगर डेंजर कहीं पे आए तो उसके इन्वायरमेंट में अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं किसी भी चीज़ के लेकर, पानी को लेकर या कॉन्सेंट्रेशंस को लेकर सॉल्ट की, तो उसका सेल जिंदा रहे, मरे ना, इस वजह से उसके अंदर एक टफ स्ट्रक्चर बाहर की तरफ डेवलप हो जाता है. दैट इज सेल वॉल. ठीक है. जो एक बिल्कुल फोर्ट की तरह, किले की तरह और मजबूत दीवारों की तरह उसकी मदद करती है, उसको हमेशा स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्टर की तरह काम करती है, प्रॉपर शेप देती है. It also helps in cell-to-cell interactions and provides a barrier to undesirable macromolecules. ठीक है. और सेल टू सेल अटैचमेंट में भी हेल्प करती है, और बैरियर की तरह दोनों चीज कर रही है. आसपास के सेल से कांटेक्ट भी कर रही है और सेपरेशन भी दे रही है. It protects, it gives shape to the cells, and it helps in cell-to-cell interactions. Clearly, the cell wall is a very important part of the plant cell structure. Now let's get into this lighter region here. This lighter region is the cytoplasm. It's a jelly-like substance filling up the cell space. And these tiny parts in the cytoplasm are the organelles. And what exactly are they? Just like the human body has different organs, the cell has various organelles. And just like the organs, each organelle performs a different function. तो जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स का अलग काम है. लंग्स का काम रेस्पिरेशन है, स्टमक का काम डाइजेशन है, हार्ट का काम ब्लड पंप करना है. तो वैसे ही सेल के अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शन होते हैं. हमने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, गोल्जी बॉडीज, इनके सबके अलग काम होते हैं. Let's study each organelle and its functions in our upcoming videos. ठीक है. तो न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे इसमें अलग अलग से दिए हुए हैं. आप भी इस चैनल को फॉलो कर सकते हो, बहुत इंटरैक्टिव वे में इट इज टेलिंग यू. ओके. ओके मैम. और इस पे केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी वीडियोस हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. समझने के लिए एनिमेशन के थ्रू यू कैन इजीली अंडरस्टैंड.
teamwork leads to greater efficiency. Whatever be the job, a complete set of people in coordination can make it possible. But a team is usually considered incomplete without a leader. A leader is the one who not only guides, but even regulates or controls the working of other team members. The same analogy can be used to study the cellular organelles. तो सेल ऑर्गेनल्स में से लीडर कौन है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज द मेन कमांड गिविंग सेंटर एंड कंट्रोलर. सेल का पूरा कंट्रोलर होता है न्यूक्लियस. तो सबसे पहले हम ऑर्गेनल्स में से न्यूक्लियस ही समझ रहे हैं. ठीक है, न्यूक्लियस का क्या फंक्शन है होता है और न्यूक्लियस क्या करता है. सबको समझ में आ रहा है ना? Everyone is understanding this? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Are like the in charge of specific functions. And can you guess who acts like the leader here? It's the nucleus. You heard me right. The nucleus is the controlling unit for every organelle. Located right at the center of the cell, it governs the functions of the other organelles. But how does it regulate the activities of other organelles? Let's try finding it out in this video. The reason why nucleus is given the status of the major cell organelle is because it contains the genetic material of the organism. Because इसके अंदर क्या होता है? पूरे सेल का लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है. मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल मतलब पूरा आपके जितने भी प्रोटीन्स बनने हैं, पूरे सेल में जितने प्रोटीन्स बनने हैं और पूरी बॉडी में जितने प्रोटीन्स बनने हैं, वो यहीं से कोडिंग पाते हैं. डीएनए में से ही एक कॉपी बनती है आरएनए, और उस आरएनए को जब राइबोसोम्स, ईआर पे प्रेजेंट राइबोसोम्स उसको डिकोड करते हैं, न्यूक्लियस में से आरएनए बन के बाहर निकलते जाते हैं और वो आरएनए राइबोसोम्स पे अटैच हो जाते हैं, ईआर के ऊपर जो राइबोसोम्स हैं, और वो प्रोटीन्स बनाते हैं. हम कहते हैं, क्वेश्चन कहते तो हैं हम, विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन फॉर्मेशन, तो वी से दैट आरईआर, राइबोसोम्स. बट एक्चुअली में उससे भी पहले राइबोसोम्स को रॉ मटेरियल कौन दे रहा है? न्यूक्लियस ही दे रहा है, जिससे राइबोसोम्स फिर बाद में जाकर प्रोटीन्स बना रहे हैं. पर आंसर इसका आरईआर ही होगा. डोंट राइट के विच ऑर्गेनेल फॉर्म्स प्रोटीन्स, तो न्यूक्लियस लिख दिया. न्यूक्लियस नहीं लिखना. न्यूक्लियस का फंक्शन जेनेटिक मटेरियल ही है. इट स्टोर्स मेनली जेनेटिक मटेरियल डीएनए, और डीएनए के साथ साथ वो न्यूक्लियोलस रखता है, न्यूक्लियोप्लाज्म रखता है, आरएनएस बनाता है, बट इट डू नॉट फॉर्म प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन बन रहे हैं ईआर पे. प्रोटीन बन रहे हैं साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स पे, ईआर पे. प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर कभी नहीं बनते. न्यूक्लियस से ऐसा स्ट्रक्चर जरूर निकलता है जो कि ईआर पे जाकर प्रोटीन्स बनाता है, पर अगर ऑर्गेनेल का नाम आएगा तो ईआर ही उसका आंसर होगा. ईआर विल बी द आंसर. RER, rough ER. Now, what could this genetic material be? If we zoom in this nucleus, we find these tangled thread-like structures. Any idea what these structures are? These are called the chromatin fibers. Are they important to us in any way? Well, they are the most important component of the nucleus and even the complete cell, because these chromatin fibers enclose the genetic material within them. When the cell has to divide, these long threads coil themselves to form a sophisticated and compact structure called the chromosome. So chromatin fiber जो थ्रेड जैसे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जब सेल को डिवाइड होना होता है, सेल को वन सेल से दो सेल्स बनने होते हैं, तो सेल क्या करता है? इनसे क्रोमोसोम बना लेता है. कॉइल करके क्या बना लेता है? We क्रोमोसोम. have come across this term often. It looks somewhat like this. These chromosomes are made up of smaller important segments. These functional units are called genes. Genes form the basis of heredity in all organisms. That means similarities and variations that organisms have with their parents. For example, what do friends and family say when they see a baby? She looks exactly like her mother, or she's so much like her father. That's because the newborn baby gets her genes from her parents. Now let's zoom in a bit So more. genes It is क्रोमोसोम्स possible, पे ही होती हैं. but a team
is usually और considered क्रोमोसोम्स incomplete के without जीन्स the क्या होती हैं? might be right. नए ऑर्गेनिजम्स में जाती है। पेरेंट से क्रोमोसोम्स की जीन किस में जाती है? नए ऑर्गेनिज्म पे। और क्रोमोसोम्स डीएनए से बने We हैं। have DNA molecules forming functional segments called genes. Many such genes come together to form the chromosomes. However, the compact chromosomal structure exists only when the cell is about to divide. So usually, when the cell is in the resting or the active phase part from cell division, the chromosomes exist as tangled threads called chromatin. तो जब सेल को डिवाइड नहीं होना तब वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेगा, और जब सेल को डिवाइड होना है तो सारा डीएनए क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम। और जब सेल को डिवाइड नहीं होना तो क्या रहेगा? थ्रेड जैसा क्रोमेटिन। ठीक है? Yes, ma'am. However, the compact chromosomal structure exists only with one thing. The genetic material is locked in the form of these chromatin threads present in the nucleus. Now, this was about why the nucleus is called the major organelle. But any idea how the system of regulation works? Well, that happens with the help of proteins. The genes present in the nucleus code for specific proteins. These proteins perform various functions that we find in the cell. So functions right from passing information, communication, or even building structures, all these are carried out by the specific proteins. That is how the nucleus helps in regulating the various functions of the other cell organelles. Unlike the other organelles, even the nucleus has its own membrane that separates the inner contents from the rest of the cytoplasm. The membrane, however, has pores to allow entry and exit of substances across it. Also, the nucleus has its own nucleoplasm that is slightly different from the rest of the cytoplasm. Now that we've learned about the ruling organelle in the cell, let's deviate towards the other working organelles as well. Let's try learning about the remaining organelles in our एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक फैक्ट्री इस तरह से काम करती है। खैर, एक फैक्ट्री जो कई चीजों का निर्माण करती है, वो कई काम करती है, जैसे असेंबल करना, मॉडिफाई करना, पैक करना और फिर निर्माण की गई चीजों को ट्रांसपोर्ट करना। तो कितना अच्छे से बता रहे हैं कि एक फैक्ट्री कुछ भी प्रोडक्ट बना रही है तो कितने सारी मशीन्स उसमें, कुछ मशीन, एक मशीन बना रही है, दूसरी मशीन उसको पैक कर रही है, तीसरी मशीन उसको चेक कर रही है, निकाल के दूसरे उसमें डाल रही है बॉक्सेस में। तो ऐसे ही सेल में अलग अलग ऑर्गेनली अलग अलग काम कर रही होती है। इसको ध्यान से समझो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फर्स्ट पार्ट है ये। इसी तरह का प्रोसेस सेल में भी होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नामक एक ऑर्गेनल फैक्ट्री की तरह ही काम करता है, जो कुछ जरूरी पदार्थ बनाता है, जबकि गोल्गी एपरेटस नामक दूसरा ऑर्गेनल पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिटेल में सीखना शुरू करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे दिखता है? बस एक लंबी ट्यूब को इमेजिन कीजिए जो कि एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। ये ट्यूब न्यूक्लियस के चारों तरफ है और ये सेल में से बाहर की ओर मूव होती है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सभी ट्यूब एक जैसे नहीं दिखाई देती हैं। इस नेटवर्क में दो अलग अलग प्रकार की ट्यूब्स हैं। ट्यूब के इस हिस्से पर कुछ पदार्थ जुड़े हुए हैं, जबकि दूसरी वाली प्लेन ट्यूब है। इन ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर को राइबोसोम्स कहते हैं। जिन ट्यूब में राइबोसोम जुड़ा होता है उन्हें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जी हाँ, अगर ट्यूब से राइबोसोम जुड़े हो तो उसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में रेफर करते हैं। और उस ट्यूब का क्या जिनसे राइबोसोम्स अटैच नहीं है? रफ का ऑपोजिट क्या है? जी हाँ, क्या होंगे? जिनमें राइबोसोम्स नहीं है उनको क्या बोलेंगे? स्मूथ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दोनों तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इन ट्यूब्स को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूब के सरफेस पर राइबोसोम की मौजूदगी दर्शाता है।
और स्मूथ दर्शाता है कि सरफेस समान है। खैर, ये दोनों ही ट्यूब पूरे सेल में एक नेटवर्क बनाते हैं। ये नेटवर्क किस लिए है? ये स्लाइड की तरह दिखते हैं, जो पूरे साइटोप्लाज्म में कुछ चीजों की मूवमेंट में सहायता करते हैं। इसी कारण ये ऐसे पाए जाते हैं। लेकिन इस फैक्ट्री का सबसे जरूरी काम क्या है? ये क्या बनाती है? और ये राइबोसोम्स किस लिए जुड़े हैं? क्या बनाती है ये? और राइबोसोम मैम प्रोटीन। प्रोटीन बनाते हैं। चलिए अगले वीडियो में देखें। हमने हमारे पिछले वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात की थी। इसी ऑर्गेनेल पर हम ध्यान देंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक फैक्ट्री की ही तरह काम करता है, जो कुछ जरूरी चीजें बनाता है, हम ये जानते हैं। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो प्रमुख प्रकार हैं। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हम जान चुके हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्यूब की सरफेस पर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। दूसरी ओर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्लेन सरफेस होती है। इस वीडियो में चलिए हम देखते हैं कि ये दोनों ट्यूबुलर स्ट्रक्चर वास्तव में क्या करते हैं। आइए हम इन दोनों यानी कि स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या आप मुझे बता सकते हैं राइबोसोम्स क्या काम करते हैं? खैर, राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस के साइट्स हैं। इसका मतलब है कि वो जगह जहां प्रोटीन वास्तव में बनते हैं। तो क्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है? ये कुछ हद तक सही है। खैर, प्रोटीन की एक प्रॉपर और स्पेसिफिक शेप होती है। इसका मतलब है कि जो लाइनर चेन बनती है, उन्हें सही से फोल्ड होना होगा। ये प्रोटीन चेन्स सिस्टर्नी यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ये ट्यूब्स इनके थ्रू पास होते वक्त फोल्ड हो जाती है। इसके अलावा प्रोटीन्स लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू मूव होकर अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। अब अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का कुछ पार्ट बनाने में हिस्सा लेता है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? तो आपने देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रोटीन की एक चेन जैसी बना रहा था और उसे सही से फोल्ड भी कर रहा था, और वो उसके अंदर से गुजर के ही अच्छे से फोल्ड हो रही थी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्लेन होती हैं, उन पे कोई राइबोसोम नहीं होते, वो क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? मैम लिपिड। लिपिड्स मैम बनाते लिपिड्स। हैं, मेम्ब्रेन्स भी बनाते हैं, हार्मोन्स भी बनाते हैं, और डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। फैट मॉलिक्यूल बनाने में मदद करता है, या ये केवल लिपिड्स को सिंथेसाइज करता है? कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। तो जो पदार्थ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनते हैं, वो अलग अलग तरीकों से मदद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि शरीर के अलग अलग सेल्स में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो अलग अलग तरीकों से काम करते हैं? इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा बनाए गए कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करते हैं। जी हाँ, और इस प्रोसेस का एक दिलचस्प नाम है क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन बनाने को क्या बोला था? विच नेम? मैम बायोजेनेसिस। हाँ, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, ठीक है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं। तो अब हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रमुख फंक्शंस को जल्दी से दोहराते हैं। ये सबसे पहले फैट मॉलिक्यूल्स बनाने में मदद करता है। ये कुछ प्रोटीन्स और लिपिड्स को भी सिंथेसाइज करता है, जो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह काम करते हैं। कुछ केसेस में ये सेल को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद करता है। आखिर में ये कुछ मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करता है, जो सेल मेम्ब्रेन बनाने में मदद करता है। हालांकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अलग अलग सेल में अलग होते हैं। उनका प्रमुख काम प्रोटीन के लिए ट्रांसपोर्ट चैनल की तरह काम करना होता है। वो सेल के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की तरह काम करते हैं। इस तरह वो सेल के बायोकेमिकल एक्टिविटी के लिए एक फ्रेमवर्क के रूप में काम करते हैं। तो
तो क्या आपको लगता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने सभी प्रोटीन प्रोटीन्स भी बनाते हैं जो कि मेम्ब्रेन में अटैच हो जाते हैं, और हमको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का काम क्या है? चैनल की तरह एक्ट करना। चैनल मतलब जिस पर्टिकुलर चीज को पार होना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पार होना है, तो वो उस चैनल के थ्रू टनल जैसी बन जाएगी प्रोटीन की, और उस सुरंग के थ्रू निकल के आएगा और अंदर आएगा सेल के साइटोप्लाज्म में। तो ये कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए गेट्स की तरह काम करते हैं। फ्रेमवर्क, ये प्रोटीन्स कुछ फ्रेमवर्क की तरह भी काम करते हैं बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए, मतलब कुछ रिएक्शंस के लिए। प्रोटीन्स, लिपिड्स और अन्य मॉलिक्यूल्स हमेशा सेल के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं? जी नहीं, यहाँ बने प्रोटीन्स को दूसरी जगहों पर भी भेजा जाता है। चलिए हमारे अगले वीडियो में देखें तो कैसे किया आपको ये जाता है। अब क्लास एंड हो रही है, आपको ये सब समझ में आ गया? एवरीवन हैज अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So I am ending the class. I hope you all have enjoyed it and try to learn, be safe, be at home. Okay, keep on your studies, and I will be giving you questions to do in homework. Okay. Okay, ma'am. Okay. I will be